So, welcome to the students for the new topic of the chapter Flow through the pipe. और आज हमारा जो टॉपिक होगा, हमारा टॉपिक क्या है? Flow through branched pipe. So, what do you mean by this? How it can be defined as? You can say that flow through the branch pipe, it can be defined as the piping network system with which the three or more than three tanks are connected with the piping network system, and we have to find the discharge in each pipe and as well as the direction of the flow. You understand? So this is your branched pipe. ये जो branched pipe है हमारा, ये किस लिए हम यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं? जब हमारे when we are having the different reservoirs and they are kept at the different elevations. उनका जो elevations है reservoirs का different elevation है, and we have to join these reservoir by the piping system so that the fluid will flow from one reservoir to another or another reservoir to the other one reservoir. You understand? तो ये जो आपका सिस्टम होगा, दिस इज कनेक्टेड बाय द ब्रांच्ड पाइप. अब इसमें हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, व्हाट वी हैव टू फाइंड देयर, बिकॉज आई यू हैव सीन दैट द reservoir A, there are the three reservoirs here. This is the reservoir A, reservoir B, and reservoir C. And you have seen that these reservoirs are kept at the different elevations. You understand? And they are connected by the pipes. You can say from reservoir A up to this point. ये जो है, इस ये जो पाइपिंग सिस्टम है, जहाँ पे क्या होगा, यू आर हैविंग द जंक्शन आर नोड्स. एक से ज़्यादा जंक्शन आपको इसमें मिलेंगे, ये जो पाइपिंग नेटवर्क सिस्टम होगा. सो यू कैन से दैट द reservoir A is connected here by the pipe number 1, and then there is a junction here. From this junction, the another pipe is given to this reservoir B, and from here the junction, see another pipe, that is pipe number 3, is connected to the reservoir C. Now the water is coming from this pipe number 1. Suppose we are having the discharge, you can say the discharge Q is here. You understand? तो or you can say जो pipe number 1 है उसमें discharge आपका है Q1. Q1 is the discharge at pipe number 1. You understand? इसी तरीके से Q2 is the discharge at pipe number 2 and Q3 is the discharge at pipe number 3. जो आपको क्वेश्चन दिया होगा, you know the parameters, आपको पाइप की लेंथ that is given, because that is in your hand, you know that how much length you require for this. So length is given, diameter of the pipe is given, and the coefficient of friction of the pipes are given. Or you can say each pipe is having you can say different length, different diameter, and different coefficient of friction. But here we will assume that the coefficient of friction, to simplify the problem, that we will take that coefficient of friction is same for all these three pipes. You understand? But we have to find out. इसी तरीके से Q2 आपका डिस्चार्ज हो गया, discharge in pipe 1, in pipe 2, and Q3 is the discharge in pipe 3. You understand? Up we have to find
हमें फाइंड क्या करना है, एक तो हमें डिस्चार्ज फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट व्हाट इज द डिस्चार्ज इन पाइप नंबर 1, दैट इज Q1, Q2 and Q3, you understand? And second one, we have to find the direction of the discharge, you understand? डिस्चार्ज का जो डायरेक्शन होगा, जो फ्लूइड फ्लो का जो डायरेक्शन होगा, वो आपका डायरेक्शन किस तरफ होगा, वेदर, जैसे ये आप देखिए, वी आर टेकिंग हियर जो फ्लूइड है दैट इज फ्लोइंग विद द ग्रेविटी, दिस इज वन ऑफ द कंडीशन, हम जहाँ पे ग्रेविटी फ्लो जहाँ पे लेंगे, यू अंडरस्टैंड? तो दिस इज यू कैन से दैट द टैंक नंबर A that is at a higher elevation. Suppose if I say that this is at a higher elevation and the fluid is flowing through the gravity, so it means that the fluid will flow from A up to D here. और D क्या है, D में एक जंक्शन है और जहाँ से आपने एक पाइप फॉर द टैंक B, दिस इज गिवन. तो जहाँ से क्या होगा, सपोज इफ Q1 इज द फ्लूइड हियर, इस पाइप में आपका फ्लूइड क्या है, Q1 है, तो जहाँ से जो आपका फ्लूइड है वो क्या होगा, इस साइड Q2 जाएगा और Q3, यू अंडरस्टैंड दिस? बट वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन, वेदर द फ्लूइड और द लिक्विड और द वाटर विच इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप, क्या जो इसकी डायरेक्शन होगी, क्या वो डायरेक्शन जो वाटर की होगी वो D से B की तरफ होगी या B से D की तरफ होगी? लाइकवाइज द डायरेक्शन ऑफ द वाटर दैट इज फ्रॉम D टू C होगी या C से D होगी, दैट वी हैव टू सी. और ये हम चीज़ें किस तरीके से चेक करते हैं, बाय द फिजियोमेट्रिक हेड, यू अंडरस्टैंड? जो फिजियोमेट्रिक हेड है उससे हमें उसकी जो फ्लूइड की, जो लिक्विड और वाटर की जो डायरेक्शन है, वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ द फिजियोमीटर हेड. तो अगर आपका यू कैन से जो फिजियोमीटर हेड आपका एट पॉइंट D, सपोज इफ यूर फिजियोमेट्रिक हेड, तो फिजियोमेट्रिक हेड आप देख सकते हैं जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव लिखेंगे कि ये जो पाइपिंग सिस्टम है हमें क्या फाइंड आउट करना है. तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, these three reservoirs which are connecting by the pipes of the different diameter, different length, and I am assuming here that the coefficient of friction is same for all the three pipes. Yeah. तो what we have to find out, हमें फाइंड करना है डिस्चार्ज. ऑब्जेक्टिव क्या है, डिस्चार्ज फाइंड करना है. डिस्चार्ज क्या होगा, दैट इज Q1, Q2 एंड Q3. एक तो हमें डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है, और यू कैन से डिस्चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वेलोसिटी V1, V2 एंड V3. ये आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, दैट सो दैट यू कैन कैलकुलेट द डिस्चार्ज, बिकॉज डिस्चार्ज दिस इज इक्वल टू Q1, दिस इज इक्वल टू A1 इंटू V1, दिस इज, यू अंडरस्टैंड? तो आपको A1 तो फाइंड आउट होगा बिकॉज द डायमीटर ऑफ द पाइप इज गिवन π/4 इंटू D स्क्वायर. दिस इज यू कैन से द area you can calculate, and then you will multiply by the B1, so you will get the discharge. So primary you can say we have to find B1, B2 and P3 so that we can calculate Q1, Q2 and P3. And second we have to find out the physiometric head. ये जो ZT, ये आपका जो physiometric head है किसका, ये जो पॉइंट है आपका, कौन सा पॉइंट है, जंक्शन D का जो फिजियोमेट्रिक हेड होगा, वी हैव टू फाइंड आउट दैट इज PD बाई ρg प्लस ZG. फिजियोमेट्रिक हेड यही होगा, दिस इज योर फिजियोमेट्रिक हेड. वी हैव टू फाइंड द फिजियोमेट्रिक हेड, यू अंडरस्टैंड, ऑफ दिस जंक्शन. तो आप देखिए जहां पे आपकी 3 अननोन J और फिजियोमेट्रिक हेड, you are having the 4 unknowns there. So it means that you require the 4 equations
टू फाइंड द 4 अननोन्स। यू अंडरस्टैंड? 4 अननोन है आपको इसमें फाइंड आउट करना है। एक तो डिस्चार्ज आपने फाइंड करना है, हर पाइप में अपने डिस्चार्ज को फाइंड आउट करना है, और दूसरा डायरेक्शन हम फिजियोमेट्रिक हेड हमें इसलिए कैलकुलेट करना है कि वी हैव टू सी कि ये जो आपका जंक्शन का फिजियोमेट्रिक हेड है, ये जो आपका फिजियोमेट्रिक हेड एट बी है या सी है उससे ज़्यादा है या कम है। अगर फिजियोमेट्रिक हेड एट पॉइंट डी ज़्यादा होगा, फिजियोमेट्रिक हेड ऑफ दिस टैंक बी, देन फ्लूइड विल और लिक्विड विल फ्लो फ्रॉम डी टू बी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? लिक्विड जो है वो डी से बी की तरफ फ्लो करेगा। यू अंडरस्टैंड? लाइकवाइज लिक्विड विल फ्लो फ्रॉम डी टू सी। यू अंडरस्टैंड? तो फिजियोमेट्रिक हेड हमें फाइंड करना है एट ऑफ द जंक्शन। उससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी जो फ्लूइड की जो डायरेक्शन है, फ्लूइड किस क्या वो जंक्शन डी से इधर करेगा, और अगर जो है फिजियोमेट्रिक हेड एट पॉइंट डी कम है, फिजियोमेट्रिक हेड ऑफ द टैंक बी ज़्यादा है, जो फ्लूइड होगा तब वो टैंक बी से डी की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। यू अंडरस्टैंड हियर? तब पहले फ्लूइड आएगा ए से डी, बी से डी, और उसके बाद ये दोनों जहाँ से मिलके दैट इज Q1 प्लस Q2, दिस इज Q3 जहाँ पे जाएंगे। यू अंडरस्टैंड दिस? तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फिजियोमेट्रिक हेड। सो इट मीन्स दैट फिजियोमेट्रिक हेड का क्या इंपॉर्टेंस है? फ्रॉम द फिजियोमेट्रिक हेड वी कैन फाइंड आउट whether the fluid is moving from the junction D to the tank B, or from the junction D to tank C, or from tank B to D or C to D. You understand? तो इस तरीके से हम डायरेक्शन जो है इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड देयर? तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या ये जो पाइपिंग सिस्टम है, इससे हम कैसे क्या फाइंड हमें करना है? वी हैव टू फाइंड आउट कि जो पाइप नंबर 1 है इसमें डिस्चार्ज कितना है। डिस्चार्ज तो हो रहा है, बट वी आर नॉट नोइंग एग्जैक्टली दैट हाउ मच डिस्चार्ज इज देयर एट पॉइंट पाइप नंबर 1। इसी तरीके से आपका जो पाइप नंबर 2 है उसमें कितना डिस्चार्ज है। लाइकवाइज जो पाइप नंबर 3 है उसमें कितना डिस्चार्ज है। तो इसका मतलब ये हमें Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट। पहली बात। सेकंड थिंग, फोर्थ जो हमें 3 चीज़ें तो ये फाइंड आउट करनी है, Q1, Q2, Q3 आर यू कैन से B1, B2, B3। velocity of the fluid at the pipe 1, velocity of the fluid at pipe 2 and velocity of the fluid at pipe 3। You understand? ये हमें फाइंड आउट करना है। और फोर्थ हमें क्या फाइंड आउट करना है? फिजियोमेट्रिक हेड एट पॉइंट डी आर यू कैन से एट बी। किसी का भी फिजियोमेट्रिक हेड आप फाइंड आउट करेंगे। सपोज इफ इट इज गिवन फिजियोमेट्रिक हेड एट पॉइंट बी इज गिवन इन द प्रॉब्लम, बट फिजियोमेट्रिक हेड एट बी एंड सी इज नॉट गिवन, तो यू हैव टू फाइंड आउट एंड यू हैव टू सी चेक इट वेदर द फिजियोमेट्रिक हेड डी इज ग्रेटर देन the physiometric head of the B and C, or the physiometric head of B and C is greater than D. उससे हमें we will find out the direction of the fluid in the pipe. You understand? तो ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। इसके लिए we require 4 equations. अब इसमें कुछ assumptions हम लेते हैं। You understand? एक तो हम कंसिडर करते हैं कि the tanks are having very large diameter. You understand? Or you can say reservoirs are very large. You understand? तो इसमें एक assumptions, हम कुछ assumptions होंगी। फर्स्ट तो ये है reservoirs are very large. You understand? तो पहले ये assumption आप ले लीजिए कि जो reservoir है ये बड़ा होना चाहिए, इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। एंड सेकंड,
आपको स्टडी कंडीशन हैज़ टू बी मेंटेन्ड। स्टडी कंडीशन हैज़ टू बी मेंटेन का मतलब यह है कि जो वाटर लेवल है ऑल दीज रेजरवायर दैट शुड बी मेंटेन कांस्टेंट। तो वाटर लेवल्स should be constant. Water level in all the 3 reservoirs, 4 होंगे तो 4 reservoir that should be constant, or you can say steady condition should be maintained. Right? So that steady conditions should be maintained. अब स्टडी कंडीशन का क्या मतलब है? स्टडी कंडीशन शुड बी मेंटेन्ड मीन्स एक तो वाटर लेवल इसका कांस्टेंट होना चाहिए एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम द वेलोसिटी of the fluid flow in the pipe or the discharge that should remain constant, right? With the respect of the time, वो चेंज नहीं होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। तो ये कुछ इसकी assumptions थी जो कि हमें we must know the assumptions. एक तो reservoirs they should be very large and water level in the reservoir that has to be maintained constant so that we should maintain the steady conditions. You understand? तो ये एक इनका assumptions था। अब इसके लिए हमें equations, we have to follow some equations. हमें कुछ equations use करने पड़ेंगी so that we will calculate. So basic equations which we require for the solving the problems. तो basic equations क्या हैं? Basic equations for solving the problem. तो basic equation for solving the problem. फर्स्ट हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यूज करेंगे। कॉन्टिन्यूटी एक इक्वेशन तो आपकी क्या होगी? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। यू अंडरस्टैंड? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में क्या होगा? दैट इज इनफ्लो ऑफ द लिक्विड एट the junction, inflow of the liquid at the junction. जंक्शन में जितना लिक्विड आपका फ्लो करेगा वो आपका आउटफ्लो ऑफ द लिक्विड, आउटफ्लो ऑफ द लिक्विड और फ्लूइड, कुछ भी वाटर लिख लीजिए, कुछ भी, फ्रॉम द जंक्शन। तो इनफ्लो is equal to outflow. You understand? So this is your continuity equation. एक तो ये इक्वेशन यूज होगा। दूसरा जो इक्वेशन यूज होगा दैट इज द बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन यूज करेंगे। एंड थर्ड वन जो इक्वेशन इसमें यूज होगी दैट इज डॉर्सी-विस्बैक इक्वेशन। तो डॉर्सी-विस्बैक इक्वेशन किसके लिए यूज करते हैं? टू फाइंड द फ्रिक्शन लॉसेस। यू अंडरस्टैंड? हेड लॉस, फ्रिक्शन लॉस।
फाइंड आउट करने को। तो ये 3 इक्वेशंस वी हैव टू यूज फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉब्लम, यू अंडरस्टैंड। ये 3 इक्वेशंस हमें यूज करने पड़ेंगे। जहां तक चीजें आपको क्लियर हैं, इसको अब शॉर्ट टर्म में दोबारा समझिए। क्या है? ब्रांच सिस्टम इज डिफाइंड एज द पाइपिंग नेटवर्क थ्रू विच द फ्लूइड इज फ्लोइंग, राइट। एक ऐसा पाइपिंग नेटवर्क है जिसके थ्रू जो है फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है। एंड दिस पाइपिंग नेटवर्क, यू कैन से दिस इज कनेक्टेड with the reservoirs. Well, you are having 3 or more than 3 reservoirs. They are connected via this piping system, and these reservoirs are at different elevation from the ground level. You understand? तो 3 या 3 से ज़्यादा reservoirs जो कि different elevations के ऊपर हैं ग्राउंड लेवल से, उनको हम इस ये जो पाइपिंग सिस्टम है उससे हम कनेक्ट करते हैं। अब इस पाइपिंग सिस्टम में क्या है कि जो लेंथ ऑफ द पाइप, जो डायमीटर ऑफ द पाइप एंड कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द पाइप, ये डिफरेंट हैं, यू अंडरस्टैंड। बट हियर आई एम अज्यूमिंग फॉर मेकिंग द प्रॉब्लम इजी, आई एम सेइंग दैट द कोफिशिएंट ऑफ द पाइप, कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन इज आई एम टेकिंग सेम हियर, यू अंडरस्टैंड। और दूसरा, ये जो पाइपिंग सिस्टम होगा, वी आर हैविंग 1 और मोर देन 1 जंक्शन, उनको हम नोड्स भी कहते हैं। एक से ज़्यादा जंक्शंस होंगे जिसके थ्रू पाइप्स जो है आपस में कनेक्टेड होंगी, यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका हो गया कि ब्रांच्ड पाइप क्या है और हम कब और क्यों कैसे यूज़ करते हैं टू कनेक्ट द रिजर्वायर्स। Different reservoirs, or you can say more than 3 or more reservoirs which are at different elevations, and if we have to join these reservoirs by the piping, there must be 1 or more junctions in the piping system here. So this type of arrangement, you can say that this is the branched pipe arrangement, you understand? अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, क्योंकि हमने पाइप्स जो यूज़ किया है ये डिफरेंट लेंथ डिफरेंट डायमीटर्स पाइप यूज़ किया है। तो इसमें क्या होगा, जो डिस्चार्ज आपका होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, यू अंडरस्टैंड। सो वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज इन पाइप नंबर 1, पाइप नंबर 2 एंड पाइप नंबर 3। ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका ये हो गया। तो डिस्चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए अगर हम वेलोसिटी पाइप 1, 2 और 3 की फाइंड आउट करते हैं, तो डायमीटर ऑफ द पाइप इज गिवन, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द डिस्चार्ज। पहला ये हो गया। दूसरा, हमें फिजियोमेट्रिक हेड को फाइंड आउट करना है, यू अंडरस्टैंड। सम प्रॉब्लम्स में कुछ टैंक्स का, कुछ एलिवेशंस का आपको फिजियोमेट्रिक हेड दिया होगा, बट हमें फिजियोमेट्रिक हेड फाइंड आउट करना है। मोस्टली वी हैव टू फाइंड द फिजियोमेट्रिक हेड ऑफ द जंक्शन। सपोज डी इज द जंक्शन हियर, जहां से एक पाइप इधर कनेक्ट किया है, एक पाइप इधर कनेक्ट किया है, यू अंडरस्टैंड। तो जंक्शन का जो फिजियोमेट्रिक हेड है, इसको फाइंड करने का व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस, क्यों हमें फाइंड आउट करना है, because we have to find the direction of the flow from the junction. जंक्शन से जो पाइप्स आपकी अटैच हैं, हमें ये देखना है कि जो डायरेक्शन ऑफ द फ्लो है, क्या वो पानी का जो फ्लो है वो जंक्शन से टैंक की तरफ जाएगा या टैंक से फ्लो आपका जंक्शन की तरफ होगा, यू अंडरस्टैंड दैट ओनली यू कैन ऑब्जर्व by calculating the physiometric head of the junction, that is point D. और जब फिजियोमेट्रिक हेड आप कैलकुलेट करते हैं तो इसमें ये कंडीशन आप याद रखिए कि पानी जो होगा वो हमेशा फ्लो वहाँ पे करेगा, वहाँ से करेगा जहाँ पे उसका फिजियोमेट्रिक हेड ज़्यादा होगा, यू अंडरस्टैंड। अगर आपका फिजियोमेट्रिक हेड एट पॉइंट डी
जंक्शन के ऊपर ज़्यादा है, तो जो पानी जहाँ से आएगा वो इधर से इस टैंक को जाएगा और इस टैंक को जाएगा। इसकी डायरेक्शन ऑफ द फ्लो क्या होगी? फ्रॉम जंक्शन टू टैंक। यू अंडरस्टैंड हियर? जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगी वो जंक्शन टू टैंक होगी। और अगर फिजियोमेट्रिक हेड एट दिस पॉइंट डी इज लेस देन द फिजियोमेट्रिक हेड ऑफ द दिस रेजरवायर वी, तो जो फ्लो होगा पानी का वो टैंक से पानी जंक्शन की तरफ आएगा। यू अंडरस्टैंड? मीन्स इधर से भी पानी आएगा और टैंक से भी पानी जहां पे आएगा, और जंक्शन के ऊपर पानी फिर ये नीचे को जाएगा। मेरा पॉइंट फॉलो किया? तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैलकुलेटिंग द फिजियोमेट्रिक हेड। फिजियोमेट्रिक हेड से हमें डायरेक्शंस को फाइंड आउट करना है, और यही हमारी प्रॉब्लम्स होगी। जितने भी इसमें न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स होंगे उसमें क्या होगा? एक तो आपको डिस्चार्ज डिफरेंट पाइप में फाइंड आउट करना है, और दूसरा आपने क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, वेदर द वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम द टैंक टू द जंक्शन और जंक्शन टू द टैंक। This only we can calculate, or this only we can see when we will calculate the physiometric head. And if the physiometric head of the junction D is greater than the physiometric head of the tank B and C, it means that the water will flow from junction D to this tank and to this tank. You understand? जहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हैं। उसके बाद how we will solve the problem. प्रॉब्लम को सॉल्व हम कैसे करेंगे? अच्छा, कुछ एजम्पशंस लिया था। एजम्पशन क्या लिया था? कि एजम्पशन हमने लिया था कि फर्स्ट जो है ये रेजरवायर्स दे शुड बी वेरी लार्ज। जो आपके रेजरवायर्स हैं वो ज़्यादा बहुत बड़े होने चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग दैट वी हैव टू मेंटेन द स्टडी कंडीशंस। वाटर लेवल जो सभी टैंक्स का है दैट शुड बी मेंटेन कांस्टेंट। और स्टडी कंडीशन मीन्स जो पानी विच इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप्स विद रिस्पेक्ट ऑफ द time, discharge and the velocity of the fluid that will not change. तो जहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। Now how we will find out? हमें जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो हम ये 3 इक्वेशंस we will use। याद रखिएगा 3 इक्वेशंस we have to use। फर्स्ट इक्वेशन we have to use continuity इक्वेशन। पहली इक्वेशन हमें क्या यूज करना है? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होगा कि जंक्शन में जो इनफ्लो होगा फ्लूइड का, सेम जो है आपका आउटफ्लो होगा फ्रॉम द जंक्शन। फर्स्ट कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन ये कहती है कि इनफ्लो ऑफ द लिक्विड और वाटर और द फ्लूइड एट द जंक्शन, दिस इज इक्वल टू आउटफ्लो ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द जंक्शन। फर्स्ट दिस इज गॉट। सेकेंड वी विल यूज द बर्नौलीज इक्वेशंस। एंड थर्ड डार्सी-विस्बैक इक्वेशन। डार्सी-विस्बैक इक्वेशंस हमें यूज इसलिए करना है क्योंकि आप देखिएगा ये पाइप का लेंथ है, फ्लूइड इज फ्लोइंग, सो देयर इज ए मेजर लॉस हियर। तो मेजर लॉस क्या है आपका? फ्रिक्शन लॉस होगा। तो हमें फ्रिक्शन लॉस फाइंड आउट करने के लिए डार्सी-विस्बैक इक्वेशन को यूज करते हैं। इस केस में हम जो माइनर लॉसेज होते हैं, ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा कि माइनर लॉसेस को हम अज्यूम ये करते हैं कि दे आर नेग्लेजिबल एज कंपेरेबल टू द मेजर लॉसेस। और माइनर लॉसेस जो हम लेते हैं ऑलमोस्ट 10%, 5 to 10% ऑफ द मेजर लॉस। तो जहाँ पे हम माइनर लॉसेस को कंसिडर करेंगे कि दे आर नेग्लिजिबल। तो जहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हैं, आप क्वेश्चन करते वक्त हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। आप देखिए इक्वेशंस को हम किस तरीके से लगाएंगे। तो देख लीजिए वर्किंग कैसे है। ये तो जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको।
अब यही है इसमें. सो लेट अस कंसिडर द फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज फ्रॉम A to D. ये आपका मेन पाइप आप कह सकते हैं. तो दिस यू हैव सीन दैट दिस इज एट द हायर एलिवेशन. दिस वन टैंक आई हैव केप्ट एट द हायर एलिवेशन. तो एंड द फ्लूइड इज फ्लोइंग विद द ग्रेविटी. तो दैट इज फ्लो कैसे होगा? A to D. अब सेकंड जंक्शन के ऊपर पहुंचेगा एट पॉइंट D. Either the flow from D to B or it can be from B to D. That we will see by calculating the physiometric head. But जहां पे हम अज्यूम करते हैं कि फ्लो इज फ्रॉम D to B. क्या है अज्यूम किया हमने? फ्लो आपका D से B की तरफ जा रहा है. एंड जो रिमेनिंग फ्लो दैट इज Q3 दैट इज मूविंग फ्रॉम D to C. तो ये तीन आपके पास हो गए फ्रॉम A to D, D to V एंड D to C. राइट. तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले अप्लाई सभी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे इसी तरीके से होंगे. एक प्रॉब्लम करेंगे भी. अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर लेवल. ये फ्री सरफेस द वाटर लेवल E है ऑफ टैंक A. ठीक है ना? ऑन द फ्री सरफेस ऑन एक सेक्शन ले लेंगे. एक सेक्शन हम कहां पे लेंगे? फ्री सरफेस. ऑन द फ्री सरफेस ऑफ वाटर लेवल ऑफ tank of free surface water level of tank A and at junction D. ठीक है. बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे हम टैंक A और जंक्शन के ऊपर. ठीक है. अब देखिए बर्नौलीज इक्वेशन लगाया है तो क्या होता है? पी ए अपॉन रो इंटू जी एट सेक्शन ए के सॉरी आप सेक्शन ए के ऊपर ले रहे हैं प्लस जेड ए. इफ आई से जेड ए इज द डेटम एट दिस इज द डेटम लाइन. ये आपका पोटेंशियल हेड है जेड ए प्लस बी ए स्क्वायर अपॉन 2G. सेक्शन बी अपने क्या लिया? सेकंड सेक्शन एट पॉइंट D. तो दिस इज यू कैन से PD रो G प्लस ZD प्लस VD स्क्वायर कर लो 2G प्लस HF1. यू अंडरस्टैंड? फ्रिक्शन लॉस इन द पाइप नंबर 1. अब देखिए पी ए अपॉन रो जी प्रेशर एट द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर. ये पहले भी आपने पढ़ा है. दिस आई विल टेक 0 पी ए 0 जेड ए तो आपको नहीं दिया क्या है, ये ऐसे रहेगा. और बी ए दैट इज वेलोसिटी ऑफ द वाटर एट द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर लेवल that is also taken as 0. तो इसको भी हम 0 लेते हैं तो this is equal to 0 and this is equal to PD upon rho G ZD BD स्क्वायर अपॉन 2G. अब देखिए जो वेलोसिटी, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, यू अंडरस्टैंड, राइट डाउन दिस पॉइंट. वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड in the junction that becomes 0. जो जंक्शन के ऊपर जंक्शन जब जहाँ से जंक्शन दिया है जो वेलोसिटी फ्लूइड का होगा जंक्शन पे वो क्या होगा? 0 हम कंसिडर करते हैं. तो दैट इज टेकन एज 0 प्लस HF1. यू अंडरस्टैंड? तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन यू हैव गॉट.
दैट इज क्या आ गई, जेट ए इज इक्वल टू पी डी अपॉन रो जी प्लस जेड डी प्लस एच एफ वन। तो ये आपके आ गई फर्स्ट इक्वेशन। यू हैव गॉट वन इक्वेशन, राइट डाउन, नोट डाउन दिस इक्वेशन, जेट ए दिस इज इक्वल टू पी डी अपॉन रो जी प्लस जेड जी प्लस एच एफ वन। तो ये एक इक्वेशन है, इसे आप नोट करें। अब हम बर्नौलीज इक्वेशन देखिए कहाँ पे लगाएंगे। एक इक्वेशन आपका ये आ गया, सीधे लिखते हैं। अब बर्नौलीज अप्लाई Bernoulli's at D and B. B is the free surface of the water tank, free surface of the water in the tank B. तो आप एक ये सेक्शन होगी और एक ये सेक्शन होगी, इसमें सेक्शन पे आप लगा, यू अंडरस्टैंड, एट डी एंड डी। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, वही पी डी अपॉन रो जी प्लस जेड जी डी प्लस बी डी स्क्वायर बाई 2g. दिस इज इक्वल टू, बिकॉज आई एम टेकिंग द फ्लूइड फ्लो फ्रॉम डी टू बी, जहाँ पे ले रहा हूँ, तो इस तरीके से ये आप क्या आ गया, पी बी रो जी प्लस जेड बी प्लस बी वी स्क्वायर 2g प्लस एच एफ टू। यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका पी डी बाई रो जी, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, पी डी बाई रो जी प्लस जेड डी, ये भी ऐसे रहेगा, प्लस ये आपका क्या बन जाएगा, जीरो, बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट द जंक्शन दैट इज जीरो, तो काइनेटिक हेड आपका जीरो हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू प्रेशर एट द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर इन द टैंक, जो फ्री सरफेस ऑफ द वाटर टैंक वी के ऊपर है, तो ये जीरो हो जाएगा। जेड वी आपके पास है, ये बी वी स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द वाटर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर इन द टैंक बी, वो भी क्या है, वो ये भी आपका जीरो प्लस एच एफ टू। यू अंडरस्टैंड। तो ये आपकी इक्वेशन दूसरी बन जाएगी, पी डी अपॉन तो इधर लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आई थी आपकी जेड ए, दिस इज इक्वल टू पी डी अपॉन रो जी प्लस जेड डी प्लस एच एफ वन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपकी आ गई, वेर इज द सेकेंड आपका आ गया, पी डी अपॉन रो जी प्लस जेड डी, दिस इज इक्वल टू जेड बी प्लस एच एफ टू। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड, राइट। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको मिटा दीजिए। अच्छा, अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन, अप्लाई कहाँ पे लगेगी, डी एंड सी।
at D and on the free surface of the water level, on the free surface of water level of टैंक सी। तो ये आपकी सेक्शन 1 और ये आपकी सेक्शन 2 हो गया। फ्लूइड में जहाँ पे एज्यूम किया द फ्लूइड इज फ्लोइंग फ्रॉम डी टू सी, यू अंडरस्टैंड। तो आप देखिए कैसे वही सेक्शन 1 डी के ऊपर लिया है, तो दिस इज पी डी अपॉन प्रेशर हेड प्लस जेड डी प्लस बी डी स्क्वायर बाई 2g, दिस इज इक्वल टू, वहाँ पे क्या होगा, पी सी बाई रो जी प्लस कितना है डेटम हेड जेड सी प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस HF3, राइट। दिस इज द फ्रिक्शन लॉस इन द पाइप नंबर 3। तो ये आपका आ गया पी डी अपॉन रो जी प्लस जेड डी प्लस 0 velocity of the fluid at the junction, this is considered as 0. A PC upon rho g, that is pressure head at the free surface of the water tank C, this is 0 plus ZC velocity of the fluid on the free surface of the tank, free surface of the fluid in the tank C, this is also velocity भी 0 होगा और ये HF3, ठीक है। तो जो आपकी इक्वेशन आ गई ये इक्वेशन नंबर 3, तो ये क्या आ गया आपका पी डी अपॉन रो जी प्लस जेड डी, दिस इज इक्वल टू जेड सी प्लस HF3. So this is your equation number 3, right? So ये 3 equations you have got. This is your equation number 3. Now, तो बना ली इक्वेशंस, तो आपने तीनों जो आपके टैंक और जंक्शंस था आपने लगा लिया। तो अब हम एक इक्वेशंस को, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशंस को यूज़ करेंगे, राइट। सो नाउ आप कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाइए। नाउ फ्रॉम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, fluid flow through the pipe or discharge through AD, जो फ्लूइड का डिस्चार्ज होगा, देखिए डिस्चार्ज थ्रू AD, discharge through AD, this is equal to discharge through DV plus discharge through DC। कंटिन्यूटी इक्वेशन यही कहती है ना। ये जो लिक्विड है जंक्शन के ऊपर, अगर मैं कहता हूं कि इसका डिस्चार्ज Q1 है जहां पे, तो जो आउट जंक्शन से निकलेगा दैट इज Q2 और Q3, दैट इज इक्वल टू Q1, और यू कैन से, कहने का मतलब क्या है, Q1 अगर डिस्चार्ज है थ्रू AD, तो दिस इज इक्वल टू Q2 हमने डिस्चार्ज लिया थ्रू AD प्लस DV, एंड Q3 इज द डिस्चार्ज थ्रू DC, तो दिस इज Q3। यही आपका
इक्वेशन है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखूं, π/4 d1 स्क्वायर इंटू v1, मतलब एरिया इंटू velocity, this is equal to discharge. B1, this is the velocity of the fluid in pipe number 1. D1, this is the diameter of the pipe number 1. This is equal to π/4 d2 square into B2 plus π/4 d3 square into B3. You understand? तो π/4 और π/4 आपका कैंसिल हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? तो आपको एक और इक्वेशन आपको आएगा, जो आपका इक्वेशन होगा d1 स्क्वायर इंटू v1, दिस इज इक्वल टू d2 स्क्वायर इंटू v2 प्लस d3 स्क्वायर इंटू v3। तो लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। तो ये आपकी इक्वेशन क्या होगी? 4, ये वाली, इसको इस बॉक्स में लिख लो। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3rd। सो यू हैव सीन दैट बाय अप्लाइंग द बर्नौली's इक्वेशन as well as the continuity equation, we have got 4 equations. That is equation number 1, equation number 2, equation number 3 and equation number 4. We have got 4 equations, और how many unknowns we have to find out, calculate हमें unknowns कितने करने हैं? We have to find 4 unknowns. Means कौन से? B1, B2, B3। डिस्चार्ज तो तभी निकलेगा ना, Q1, Q2, Q3 मीन्स उसको निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड V1, B2, V3। 3 अननोन तो ये हो गया, और एक अननोन कौन सा है? हमें फिजियोमेट्रिक हेड निकालना है। सो वी हैव टू कैलकुलेट 4 अननोन्स। वी आर हैविंग द 4 इक्वेशंस, सो इट मीन्स दैट वी कैन कैलकुलेट दीज 4 अननोन्स बाय यूजिंग दीज 4 इक्वेशंस। तो ये आपका था फ्लो थ्रू द ब्रांच पाइप, ये इसका मेथड है। और इसी बेस के ऊपर आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन में क्या दिया होगा? सिर्फ आपको डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है ईच पाइप में, और दूसरा आपको क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। उसको फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू फाइंड द फिजियोमेट्रिक हेड। तो फिजियोमेट्रिक हेड, और समटाइम्स क्वेश्चन में सारी चीज़ें दी हैं, सपोज एक फिजियोमेट्रिक हेड नहीं दिया है, वो आपको कैलकुलेट करना है। डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है, फिजियोमेट्रिक हेड कैलकुलेट करना है। तो दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम यू आर हैविंग हियर, जो कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स होंगी, और जो इसका मेथड है, तरीका है, जो कंसेप्ट है, वो आपको सारा मैंने समझा दिया है। यू अंडरस्टैंड? तो एक प्रॉब्लम ले लेते हैं प्रैक्टिकल, सेम प्रोसीजर लगाना पड़ेगा, बट उसको देखेंगे हम दैट हाउ वी विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम, राइट? तो फर्स्ट आई विल राइट डाउन द प्रॉब्लम। So this I have written one numerical. We will find out, and from this numerical we will just understand the concept which we have already discussed about the piping system, जहाँ से हमें पता चलेगा कि how we will apply the equations and what we have to find out, what is given in the problem, किस किस्म की प्रॉब्लम आएगी, हमें क्या फाइंड आउट करना है और किस तरीके से फाइंड आउट करना है, दैट वी विल सी हियर। तो जस्ट आई हैव रिटन द वैल्यूज ऑफ द न्यूमेरिकल। व्हाट द न्यूमेरिकल इज लाइक दिस। सपोज देयर इज ए पाइपिंग सिस्टम एंड 3 reservoirs A, B and C which are at different elevations. They are connected by the 3 pipes which is having the different diameter, which is having the different length, whereas the coefficient of friction of all the pipe is taken as same here. You understand? तो इसका लेंथ, डायमीटर एवरी पाइप का दिया है। सपोज इफ आई से दिस इज फ्रॉम A to D जो पाइप है, आई एम टेकिंग दिस इज पाइप नंबर 1, तो इसका दिया है L1 कितना है, लेंथ कितनी 1200 मीटर है, डायमीटर 30 सेंटीमीटर है। लाइकवाइज ये जो आपका पाइप नंबर 2,
इसमें 600 मीटर है L2 एंड डायमीटर 20 सेंटीमीटर है। लाइकवाइज दिस जो पाइप 3 है दिस इज 800 मीटर एंड डायमीटर इज 30 सेंटीमीटर। दिस इज गिवन as I have already told you, you are having the different lengths and different diameters of the piping system, whereas the coefficient of friction is same. This is given here. In the problem they have datum head for the tank A, means from the datum line जो आपका आप कह सकते हैं अर्थ से लेके जहाँ तक जो इसका एलिवेशन है, जो इसका पोटेंशियल हेड है, दैट इज गिवन ZA, दिस इज 40 मीटर। तो ZA आपको दिया गया है, दिस इज 40 मीटर। इसी तरीके से टैंक बी का भी आपको गिवन एज datum head of the tank B, that is ZV, this is given as 38 मीटर। यू अंडरस्टैंड? हमारे पास ना ही ZD है और ZC हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, राइट। तो फाइंड क्या करना है, डिस्चार्ज इनटू आर फ्रॉम B एंड C। क्या मतलब हुआ कि ये हमारा जंक्शन है, इनटू का मतलब क्या हुआ कि जंक्शन से डिस्चार्ज B और C की तरफ जाएगा या फ्रॉम B और C से डिस्चार्ज जंक्शन की ओर जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम ये जो आपका डेटम हेड है ZT का फिजियोमेट्रिक हेड, जिसे हम फिजियो नॉट डेटम हेड, फिजियोमेट्रिक हेड ऑफ दिस जंक्शन D, we have to calculate for finding the direction of the flow of the water in the pipe। के डायरेक्शन ऑफ द फ्लो D to B है, D to C है, या B से D है, या C से D है, यही पूछा गया है। तो ये तभी पता चलेगा कि जब हम इसका फिजियोमेट्रिक हेड फाइंड आउट करेंगे एट दिस पॉइंट D, ZD हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वहां पे हम देखेंगे अगर आपका ये फिजियोमेट्रिक हेड जो आपने कैलकुलेट किया है, इफ इट इज मोर देन दैट ऑफ द फिजियोमेट्रिक हेड ऑफ दिस टैंक C एंड फिजियोमेट्रिक हेड ऑफ द टैंक D, B और C, तो तब इसका मतलब होगा जो पानी का फ्लो होगा वो इस तरीके से D से B की तरफ जाएगा और D से C की तरफ जाएगा। और अगर इसमें से किसी भी टैंक का फिजियोमेट्रिक हेड जो है वो D से ज़्यादा होगा तो पानी का फ्लो उस टैंक से जंक्शन की तरफ जाएगा। यू अंडरस्टैंड? दिस इज द प्रॉब्लम। और एक चीज हमें और फाइंड आउट करनी है, ZC, वी हैव टू फाइंड ZC। तो ये चीजें हमें फाइंड आउट करनी। इसका जो मैंने आपको प्रोसीजर दिया, जो उसको मेथड दिया, वो क्या है, सभी प्रॉब्लम्स में एक जैसा ही मेथड होगा। हमें 3 इक्वेशंस का यूज करना है। बर्नौलीज इक्वेशंस का यूज करना है, कंटिन्यूटी इक्वेशंस का यूज करना है, और उसके साथ साथ जो डार्सी-विसबैक इक्वेशन होगी उसका यूज होगा, क्योंकि हेड लॉस कैलकुलेट करने के लिए। यू अंडरस्टैंड? तो पहले हम बर्नौलीज इक्वेशन लेते हैं। अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन, सीधा लिखूंगा मैं कहां पे, अप्लाई A एंड D। एक सेक्शन आप टैंक A के ऊपर ले लीजिए, सेक्शन नंबर 1 ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर लेवल ऑन द टैंक A, एंड सेकंड सेक्शन आई एम टेकिंग ऑन द जंक्शन D। तो ये तो पहले भी आपने किया है। क्या होगा, सीधा है PA बाई रो G प्लस ZA प्लस BA स्क्वायर बाई 2G, दिस इज इक्वल टू PD बाई रो G प्लस ZD प्लस BD स्क्वायर बाई 2G प्लस HF1। अंडरस्टैंड? लॉसेस। तो जैसे आपको पता है, ये आपका 0, ZA दिस इज गिवन एज 40, लिख लीजिए आप 40 प्लस BA स्क्वायर। BA क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर लेवल ऑफ टैंक A
तो वो भी जब का 0 होता है, एंड दिस इज इक्वल टू पी डी बाई रो जी प्लस जेड डी, राइट। हमारे पास यस जे नहीं है, और जे भी आपका बी डी स्क्वायर बाई ये जंक्शन के ऊपर जो वेलोसिटी है दैट इज टेकन एज 0, जे भी 0 आ जाएगा, प्लस HF1, यू अंडरस्टैंड। तो इक्वेशन जो आपकी बनी वो क्या बनी, 40 इक्वेशन बनी 40 इज इक्वल टू पी डी बाई रो जी, दैट इज पी डी बाई रो जी प्लस जेड डी हमारे पास नहीं है, प्लस HF1, यू अंडरस्टैंड, HF1। तो इसी तरीके से ये इक्वेशन आपने ले ली। अब HF1 भी हम डार्सी-विस्बैक इक्वेशन लगा के हम हेड लॉस फॉर द पाइप नंबर 1 निकाल लेते हैं, यू अंडरस्टैंड। तो इसको आपने ये वैल्यूज आप लिख लीजिए, ठीक है। तो मुझे स्पेस के लिए चाहिए तो मैं इसको मिटाऊंगा सभी को, और चलो इधर तक ही करते हैं। तो जहाँ पे मैं HF1 को कैलकुलेट करूँगा तो HF1 आपका क्या आएगा, देखिए HF1 ये हमें फाइंड आउट करना है, इसके लिए होगा 4FL1 V1 स्क्वायर अपॉन 2G into D1, you understand, this is the formula, right। अच्छा B1 आप निकाल लीजिए, B1 इसमें क्या होगा B1 आपका क्या है इसमें, क्योंकि ये आपको Q1 दिया है, Q1 इज गिवन इज दिस इज, इसमें पाइप नंबर 1 में जो मेन पाइप है उसने दिया है डिस्चार्ज फ्रॉम पाइप A दैट इज थ्रू AD 60 लीटर पर सेकेंड 0.06 मीटर क्यूब। तो Q1 अपॉन A1 होगा, दिस इज 0.06 अपॉन A1 क्या है π/4 इंटू व्हाट इज योर D1, दिस इज गिवन एज 30 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर लो 0.3 का होल स्क्वायर। तो जहाँ से आप कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B1, B1 की क्या वैल्यू आई आपके पास। सो B1 इज 0.84 मीटर पर सेकेंड। तो इसी तरीके से आपका B1 निकल गया, तो जहाँ पे 0.84 मीटर पर सेकेंड, यू अंडरस्टैंड। आपका B1 निकला है तो आप Q1 निकाल सकते हैं, Q1 इज इक्वल टू A1 इंटू V1 मल्टीप्लाई करो तो आपके पास Q1 की वैल्यू आ जाएगी। चलो अभी ये हम बाद में करेंगे Q1 की वैल्यू, पहले हमें निकालना HF1। तो B1 हमने निकाल लिया, तो जहाँ पे वैल्यू आप पुट कर लीजिए 4 इंटू व्हाट इज योर द फ्रिक्शन फैक्टर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.006 L1 दिस इज 1200 एंड B1 ये अभी आपने फाइंड आउट किया 0.84 का होल स्क्वायर एंड 2 इंटू 9.81 एंड D1 कितना है 0.3। तो इसे सॉल्व करने के बाद HF की कितनी वैल्यू, HF1 की कितनी वैल्यू आई बताइए, हाउ मच HF1, दिस इज इक्वल टू 3.518 मीटर, 3.518 मीटर। तो देयरफॉर HF1 जहाँ पे लिख लीजिए HF1 3.518 मीटर, यू अंडरस्टैंड। क्लियर। अब देखिए 40 दिस इक्वेशन HF की वैल्यू जहां पे आप पुट कर दीजिएगा
है, पुट द वैल्यू ऑफ, ये मैं ऊपर वाला बिठा लेता हूँ, ये बिठा ही दो, जाता है। सो पुट द वैल्यू ऑफ HF1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगी 40, दिस इज इक्वल टू 40, this is equal to PD upon rho G plus ZD plus 3.518. You understand? So what is the value of PD? So therefore, PD upon rho G plus ZD. This is equal to 40 minus 3.518. तो कितना आया ये 36 पॉइंट, कर लो इसे, $36.482 मीटर। तो दिस इज 36.482। आप देखिए फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मुझे बताइए ये PD बाई रो जी प्लस HD, व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये आपका आ गया फिजियोमीटर मैट्रिक हेड, physiometric head of junction D। अब ये है आपका physiometric head of junction D। कितना है? 36.482 मीटर। अब जहां पे जो ZV दिया है, अगर ये 38 मीटर है तो इसका फिजियोमीट्रिक हेड जो होगा उसमें जब ये चीज जीरो होगी, ये तो जीरो है क्योंकि एट द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, सो इसका मतलब है कि जो आपका फिजियोमेट्रिक हेड ऑफ द टैंक बी है, जस्ट अंडरस्टैंड, टैंक बी का जो फिजियोमेट्रिक हेड है दैट इज मोर देन दैट ऑफ द फिजियोमेट्रिक हेड ऑफ जंक्शन डी। तो इसका मतलब जो फ्लो होगा, जो वाटर का फ्लो होगा वो फ्रॉम डी से बी की तरफ होगा या बी से डी की तरफ होगा। फ्लो आपका वाटर का जो डायरेक्शन होगी वो फ्रॉम बी से डी की तरफ होगी, मींस टैंक बी से फ्लो आएगा, टैंक ए से उधर से फ्लो आया। मैंने अज्यूम किया था गलत कंडीशन, मैं जहां से लिया था डी टू बी, बट द फ्लो विल कम फ्रॉम दिस टैंक, फ्लो विल कम, डायरेक्शन क्या होगी फ्रॉम बी टू डी। समझ आया कैसे हमने डायरेक्शन फाइंड आउट की? हमने इसका फिजियोमेट्रिक हेड देखा और आप देखिए कि जो फिजियोमेट्रिक हेड है इसका वो कितना है 36.482 मीटर, लेकिन जो फिजियोमेट्रिक हेड गिवन है हमें इसका टैंक बी का, दिस इज 38 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिजियोमेट्रिक हेड ऑफ द टैंक बी दैट इज ग्रेटर देन द फिजियोमेट्रिक हेड ऑफ द जंक्शन डी, सो द फ्लो ऑफ द वाटर दैट विल टेक प्लेस फ्रॉम टैंक बी टू जंक्शन डी। समझा गया? डायरेक्शन जो होगी फ्रॉम बी टू डी होगी। पहला तो हमने क्लियर कर दिया। यू अंडरस्टैंड? जेड तो हमारे पास है नहीं, अब जेड तो हमें कैलकुलेट करना। जब जेड कैलकुलेट करेंगे, एक तो हमें जेड कैलकुलेट करना है ही है, और दूसरा हमें उस वक्त हमें ये भी मिलेगा कि इसका डायरेक्शन क्या डी से सी की तरफ होगा या सी से डी की तरफ होगा। दैट वी विल चेक व्हेन वी विल कैलकुलेट द फिजियोमेट्रिक हेड ऑफ द टैंक सी। यू अंडरस्टैंड?
तो जहाँ तक तो पहली चीज़ आपको क्लियर होगी कि जो आपका फ्लो होगा पानी का वो डी से बी की तरफ नहीं होगा, फ्रॉम बी से डी की तरफ होगा, बिकॉज वी हैव कैलकुलेटेड द फिजियोमेट्रिक हेड ऑफ द पॉइंट डी। जहाँ तक चीज़ क्लियर है। अब देखिए, अब आप लगाइए अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन एट पॉइंट और नाउ सेकंड इसमें क्या लगाएंगे, अब अप्लाई Bernoulli's equation at point B and D। हम डी बी से नहीं लेंगे, हम बी से डी लेंगे, क्योंकि सेक्शन 1 हमारी बी होगा और सेक्शन 2 हमारा डी होगा, बिकॉज द वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस टैंक टू वर्ड दिस। अगर हमारा टैंक वाटर हमारा डी से बी को फ्लो करता तो हम पॉइंट सेक्शन 1 डी के ऊपर लेते और सेक्शन 2 हम टैंक के फ्री सरफेस पे लेते, राइट। तो पॉइंट बी है तो क्या अप्लाई होगा, दैट इज पी वी बाई रो जी प्लस जेड बी प्लस बी वी स्क्वायर बाई 2g, दिस इज इक्वल टू पी डी रो जी प्लस जेड डी प्लस बी डी स्क्वायर बाई 2g प्लस HF2। दिस इज द फ्रिक्शन लॉस इन द पाइप नंबर 2, HF2, राइट। पुट कर लीजिए वैल्यू, जो आपका 0 आ जाएगा, पी वी अपॉन रो जी 0 प्लस जेड वी ऐसे ही रहेगा प्लस 0, दिस इज इक्वल टू व्हाट इज योर पी डी अपॉन रो जी, ये तो हमें ये लिख लीजिए ऐसे ही, पी डी अपॉन रो जी प्लस जेड डी प्लस 0 प्लस HF2, यू अंडरस्टैंड। आर हमें जेड बी भी दिया है। अब जेड बी दिस इज इक्वल टू पी डी अपॉन रो जी प्लस जेड डी, इसको ब्रैकेट में रख लो आप, और HF2, यू अंडरस्टैंड। जेड बी हमें कितना दिया है, जेड बी हमें दिया है, ये देखिए, दिस इज गिवन, जेड बी इज गिवन इन द प्रॉब्लम, दैट इज 38 मीटर। तो पुट कर लीजिए, दैट इज 38। अब देखिए पी डी अपॉन रो जी प्लस जेड डी वी हैव कैलकुलेटेड, जे वाला हमें कैलकुलेट किया था, तभी तो 36.482 आया था। दिस इज लेस देन जो हमारे फर्स्ट इक्वेशन पे किया 482 आई थिंक। तो व्हाट इज यूर दिस, दैट इज 36.482। तो दिस इज 36.482 प्लस HF2। तो हमें सीधा जहाँ से HF2 मिल जाएगा, हमें फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है HF2 का, 4FL2V2 स्क्वायर अपॉन 2G कर D करके, वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ से हम सीधा इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, राइट। तो अब देखिए इसको मिटा लेते हैं। सो देयरफॉर HF2, जहां से हम HF2 हमारा निकलेगा, HF2 दिस इज इक्वल टू 38 माइनस 36.482 एंड दिस इज इक्वल टू कितना आया, दे ये कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 1.518 मीटर।
1.518 मीटर। तो दिस इज 1.518 मीटर। तो HF2 की वैल्यू हमने इस तरीके से यहाँ से निकाल ली। यू अंडरस्टैंड। अब देखिए हमें डिस्चार्ज निकालने के लिए Q2 चाहिए। तो Q2 चाहने के लिए, Q2 का क्या मतलब है, क्योंकि Q1 डिस्चार्ज हमें दिया था, बट Q2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें V2 वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है ना। तो V2 वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए HF2 की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, तो B2 को वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि B2 अगर वेलोसिटी हमें मिलेगी तो सो दैट वी कैन कैलकुलेट द डिस्चार्ज इन द पाइपलाइन दे, जो आपकी BD पाइपलाइन है, इसमें हम डिस्चार्ज को फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज A2 इंटू V2। तो इसको फाइंड करने के लिए HF2 हमने निकाल लिया। तो HF2 को इन टर्म्स ऑफ फार्मूला लिखिएगा। अगर हम ऐसे लिखें HF2 दिस इज इक्वल टू 4FL2 B2 स्क्वायर अपॉन 2G_D2, राइट? यू अंडरस्टैंड? और दिस इंप्लाइज HF2 हमारे पास है 1.518, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 0.006, L2 हमें दिया है दैट इज 600 मीटर, B2 हमें फाइंड आउट करना है, 2 इंटू G 9.81 है, और D2 भी हमें दिया है दैट इज 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर, राइट? तो जहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे आपका B2 का क्या होगा, 1.518 इंटू 2 इंटू 9.81 इंटू 0.2, 4 जब 0.006 इंटू 600 अंडर रूट। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने के बाद यू विल कैलकुलेट क्या वैल्यू आएगा, चेक करके बताइए मुझे। सो B2 दिस इज इक्वल टू 0.643 मीटर पर सेकेंड। सो बाई सॉल्विंग कैलकुलेटर से चेक करें, 0.643 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपने B2 की वैल्यू निकाल ली। यू अंडरस्टैंड? तो B2 की वैल्यू आपके पास है, A2 आपको पता है π/4 इंटू D2 स्क्वायर इंटू B2। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप आपका Q2 निकल जाएगा। यू अंडरस्टैंड? तो Q2 तो डिस्चार्ज इन पाइप सेकंड क्या है, दैट इज डिनोटेड बाय Q2। तो Q2 आपका निकल गया π/4 इंटू D2 स्क्वायर, क्या होता है Q2, A2 इंटू V2, एरिया इन द पाइप, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप सेकंड, दैट इज A2, वो होगा π/4 इंटू D2 स्क्वायर, बिकॉज D2 इज द डायमीटर ऑफ द पाइप सेकंड, V2 वेलोसिटी आपके पास है A2 B2 क्या है 0.643। तो पुट करें वैल्यू π/4 इंटू व्हाट इज D2, दैट इज 0.2 का होल स्क्वायर इंटू 0.643, और Q2 आपका कैलकुलेट करने के बाद 20.2 लीटर्स पर सेकेंड, जस्ट यस। तो ये आपका आएगा 0.0202 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये आपका आ गया 0.0202 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसे लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करें, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, और ये आपका लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 20.2 लीटर्स पर सेकेंड, राइट? सो ये आपका आ गया, ये क्या आ गया आपका Q2। यू अंडरस्टैंड? तो आपने Q2 भी डिस्चार्ज निकाली है यहाँ से। अब दोबारा आप क्या करें, बर्नौलीज इक्वेशन आप अप्लाई कर दें
at point D and C. Apply at point D and C. Apply Bernoulli's equation at point D and C. तो ये भी आपका आ जाएगा पी डी बाई रो जी प्लस जेड डी प्लस बी डी स्क्वायर बाई 2g. सेक्शन सेकंड हमने लिया है सी, बिकॉज द वाटर आई हैव टेकन दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम डी टू सी हियर. तो ये आपका आ गया पी सी बाई रो जी प्लस जेड सी प्लस बी सी स्क्वायर 2g प्लस HF3. यू अंडरस्टैंड? तो ये देखिए आपकी वैल्यू J0 प्लस J तो आ गया ZD, तो J भी आपका 0 हो गया, नॉट 0 सॉरी, PD अपॉन J कैसे 0 आएगा, J तो नहीं आएगा, प्लस ZD, इसको ब्रैकेट में रख लो, J आपका 0 हो गया. दिस इज योर 0, राइट. तो पी सी बार रो जी ये आपका 0, जेड सी तो आपको ना कैलकुलेट करना है, बी सी वेलोसिटी एट द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर दैट इज आल्सो 0 प्लस HF3, राइट. तो इक्वेशन आपकी बन गई ये पी डी अपॉन रो जी प्लस जेड डी. ये हमने फाइंड आउट किया था, ये कितना फाइंड आउट किया था 36.482, राइट. So this is 36.482. इसको लिख लो आप इसमें 36.482, जिसकी जगह ZC हमें फाइंड आउट करना है. तो 4F3 इसमें लिख लीजिए, 4FL3B3 का स्क्वायर अपॉन 2GD3. यू अंडरस्टैंड? तो ये फार्मूला लगाइए 2GD3. अब प्रॉब्लम ये है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, B3 फाइंड आउट करना है, तभी तो हम निकाल देंगे. तो B3 हम देखिए कैसे निकालेंगे. देखिए जहाँ पे अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं तो देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या होगा, Q1 दैट इज द डिस्चार्ज इन द पाइप AD प्लस Q2 दिस इज इक्वल टू Q3, राइट. Q1 प्लस Q2 दिस इज इक्वल टू Q3. तो Q1 हमारे पास था 0.06 प्लस Q2 भी हमने निकाला है, दैट इज 0.0202, राइट. 0.0202, दिस इज इक्वल टू Q3, राइट. आर यू कैन से Q3 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम ऐसे लिखें π/4 इंटू D3 स्क्वायर इंटू B3, दिस इज इक्वल टू, इसको सम करो कितना आया, 0.06 0.002, दिस इज इक्वल टू 0.0802, राइट. सो दिस इज 0.0802, राइट. तो जहाँ से D3 की वैल्यू पुट कर लीजिए आप, π/4, D3 इज गिवन 30, so means 0.3 का होल स्क्वायर इंटू B3, दिस इज इक्वल टू 0.0802. तो बाई सॉल्विंग दिस, इसे सॉल्व करके B3 इज इक्वल टू 0.0802 डिवाइडेड बाई दिस,
करके, तो B3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। वेलोसिटी क्या आएगी B3? दिस यू कैन कैलकुलेट एंड टेल मी दैट हाउ इज योर B3? दिस इज इक्वल टू 1.134 मीटर पर सेकेंड। दिस इज 1.134 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपने वेलोसिटी B3 की निकाल ली। Q3 निकालना होगा, A3 B3 को मल्टीप्लाई कर लो। अब देखिए आपके पास B3 आ गया, सारी चीज़ें आपके पास हैं और ZC आप निकाल लेंगे, राइट। कैसे निकालेंगे? पुट कर लो वैल्यू वेलोसिटी की और इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ZC की वैल्यू आपको मिल जाएगी। यू अंडरस्टैंड? तो 36.482 ZC प्लस 4 इंटू 0.06 एफ ऑफ का है, कितना है? व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ एफ? 0.006 है, नॉट 06, 0.0006 L3. What is your L3? L3 is 800 मीटर। B3 अभी आपने निकाला है 1.134 का स्क्वायर, 4 FL3 V स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 इंटू व्हाट इज योर D3? दैट इज 30 सेंटीमीटर था। तो इसको कैलकुलेट करने से आपके पास ZC की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ZC की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके बताओ। दिस इज 32.238 मीटर, 32.288 मीटर। So this is 32.288 मीटर ZC, राइट। अब देखिए इसमें ZC की वैल्यू जो हमने निकाली है ये है आपकी आई है 32.288 मीटर, राइट। और ZT जो हमने फिजियोमीट्रिक हेड एट द पॉइंट D निकाला था दैट इज 36.482 समथिंग लाइक दिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिजियोमीट्रिक हेड एट द पॉइंट D दैट इज ग्रेटर देन द फिजियोमीट्रिक हेड एट द पॉइंट C, राइट। सो इट मीन्स क्या मतलब हुआ इसका कि द वाटर विल फ्लो फ्रॉम D टू B, क्योंकि जो फिजियोमीटर हेड जो D के ऊपर है वो ज़्यादा है, जो फिजियोमीटर हेड जो टैंक C के था वो क्या है, कम है। तो इसलिए जो फ्लो ऑफ द वाटर होगा वो क्या होगा, फ्रॉम D टू C। ये आपने अज्यूम कंडीशन करेक्ट किया था, लेकिन जहाँ पे मेरी जो कंडीशन जो थी वो करेक्ट नहीं थी, तो इस प्रॉब्लम में आपने देखा इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। जैसे मैंने आपको 4 इक्वेशंस के बारे में बताया था, एक तो बर्नौलीज़ इक्वेशंस लगेगी, एक आपकी फ्रिक्शन के लिए डार्सी-विस्बैक इक्वेशंस होगी, और थर्ड वन इक्वेशन आपकी क्या होगी, कंटिन्यूटी इक्वेशंस होंगी। तो ये लगाने से हमारे पास 4 इक्वेशंस, 4 अननोन, Q1, Q2, Q3, उसको निकालने के लिए हमें V1, V2, V3 फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर हमें हेड निकालने हैं तो उसके लिए ये इन्हीं इक्वेशंस को आप यूज़ करके आप कोई भी हेड निकाल सकते हैं जो आपको दिया है, नहीं दिया है तो आप इन इक्वेशंस से इस किस्म के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। दिस इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्लो थ्रू द ब्रांच पाइप। उसमें हमें, और आपने डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं पता पानी जहाँ से आ रहा है जहाँ जाएगा जहाँ नहीं। इसमें जो आपने ब्रांचिंग ऑफ द पाइप सिस्टम है वो ये देखना है कि हमारा जो वाटर है क्या वो जंक्शन से टैंक की तरफ फ्लो करता है, या फ्लो टैंक से जंक्शन की तरफ करता है। दैट ओनली यू कैन फाइंड आउट बाई कैलकुलेटिंग द फिजियोमेट्रिक हेड। और आपने देखा जो फिजियोमेट्रिक हेड आपका ZD था, ये आई थिंक ये था 36.482
4A2। अब देखिए जो फिजियोमेट्रिक हेड आपका टैंक बी का था दैट इज 38 मीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिजियोमेट्रिक हेड टैंक बी का ज़्यादा था, इसका कम था, तो इसलिए जो वाटर है वो कहाँ पे फ्लो किया, वो वाटर आपका जहाँ से जहाँ पे फ्लो किया ऊपर, राइट, यू अंडरस्टैंड। तो जहाँ जहाँ पे फिजियोमेट्रिक हेड ज़्यादा होगा उस साइड से वाटर आपका फ्लो ऊपर करेगा। इसी लाइकवाइज जो फिजियोमेट्रिक हेड ये ज़्यादा है एंड फिजियोमेट्रिक हेड जो हमने कैलकुलेट अभी किया ZC दैट इज लेस है, सो वाटर फ्लो की जो डायरेक्शन होगी फ्रॉम D टू C होगी अप टू टैंक की तरफ। यू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, practical topic. This topic is very helpful for the people who are working in the field department, municipal corporation, public health engineering and other department industries वगैरह। तो उसमें ये चीज़ें आपके प्रैक्टिकली यू हैव टू फेस ऑल दीज थिंग्स, आपको डिज़ाइन करना पड़ता है, आपको इन पे काम करना पड़ता है फील्ड में, ये सारी चीज़ें, ऑल दीज थिंग्स आर कॉमन एंड वी हैव टू सी ऑल दीज थिंग्स, वी मस्ट नो कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड दैट। तो आज का जो टॉपिक था फ्लो थ्रू द ब्रांच्ड पाइप, तो एक न्यूमेरिकल भी इसका हमने कर लिया जिससे हमें बाकी चीज़ें सारी क्लियर हो गई। सो नेक्स्ट जो इसका टॉपिक होगा वो हम अगला जो लेक्चर होगा वो हम अगला लेक्चर में देखें, वो भी आपका पाइप नेटवर्क के ऊपर होगा, यू अंडरस्टैंड। तो पाइप नेटवर्क सिस्टम के ऊपर हम स्टडी करेंगे, यू अंडरस्टैंड दिस। सो थैंक यू वेरी मच।